Hello students, welcome to my class. I, Dr. Swati Pandya, welcomes you. My dear students, today in this session of chapter 6, we are going to start with a very important process, that is protein synthesis. And protein synthesis is required in the body because protein is found everywhere. Either it may be structural protein, globular protein, fibrous protein, or any functional protein. So, for protein synthesis, this will be the first step known as transcription. Differently in transcription process occurring in prokaryotes, that is in bacteria, first we are going to start with this, and then also we'll discuss about transcription related to eukaryotes. So prokaryotic and eukaryotic, the basic difference is of nucleus. The nuclear organization is well defined in eukaryotes. It has nuclear membrane, even chromosomal structures, they are complex type with histone, non-histone proteins along with the DNA which wrap that we have learned in packaging of DNA earlier. But if we see the prokaryotes, they have simple nucleoid. Only the circular DNA is found free in the cytoplasm. So uh, this is the thing which you require. This knowledge you will require for the further topic. Now prokaryotes, first we will start, and before that we'll define the term transcription. So what do you mean by transcription? Actually, it is the process of copying genetic material from one strand of DNA into RNA. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये जस्ट डीएनए के अंदर जो मैसेज पड़ा है वो आरएनए उस मैसेज को रिसीव करता है, और जहाँ पे प्रोटीन बनाने की ज़रूरत है, मोस्टली प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स के ऊपर, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस पे. So actually this RNA which is taking message from DNA, that will carry forward the message taken from DNA to ribosome where protein synthesis will be going. So ये पूरी प्रोसेस को हम प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ते हैं, और किस तरह का प्रोटीन बनाना है वो डीएनए डिसाइड करता है, और डीएनए खाली मैसेज देता है, मैसेज आरएनए ले जाता है, और उसमें भी we know that 3 different type of RNA they are found: messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. So जो मैसेज ले जाने का काम करता है वो करेगा mRNA. The name is indicating us messenger RNA. तो यहाँ पे आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसमें बेसिकली काम होगा, फंक्शनैलिटी विल बी सीन फॉर mRNA. ठीक है, mRNA will be taking message from DNA. So copying of message or information, genetic information from DNA strand by RNA, taking by RNA, that is termed as transcription. Here also the principle of complementary governs the process of transcription, except the adenose now forms base pair with uracil instead of thymine. We all know आरएनए के अंदर थायमीन नहीं होता है, थायमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. इसलिए जहाँ जहाँ पे भी डीएनए के स्ट्रक्चर में थायमीन प्रेजेंट होगा, आरएनए उसको यूरासिल की तरह एक्सेप्ट करेगा. तो जहाँ पे भी टी प्रेजेंट होगा दैट विल बी टेकन एज यू. ओके, सो अगर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड में अगर ए होगा एडेनिन, और एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ बेस पेयर करता है, बट यहाँ पे आरएनए है तो एडेनिन के सामने होगा यूरासिल. ठीक है, थायमीन विल बी नॉट प्रेजेंट. मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगी बाद में. However, unlike in the process of replication, which once set in, the total DNA of an organism gets duplicated. But in transcription, only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA. This is the major difference. Okay? This necessitates defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. Only single strand will be
transcribed. Why both the strands are not copied during transcription? This question has been asked. So we will describe it. Firstly, if both strand act as template, जैसा हमने replication of DNA में देखा, जैसे ही वो DNA separate होता है, दोनों ही DNA strands template की तरह behave करती हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे नए DNA को डेवलप करती हैं. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है और नए DNA स्ट्रैंड्स बनते हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता. अगर यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट बनती तो क्या होता? दे कुड कोड फॉर RNA मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस. दोनों जगह डिफरेंट सीक्वेंसेस बनते. साथ ही साथ in turn, if they code for proteins, the sequence of amino acid in the proteins would be different. अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप पूरा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ईच एंड एवरी लाइन विल बी नॉट क्लियर टू यू. तो अभी आपको खाली ये चीज़ें माइंड में सेव करके रखनी है. फिर जब हम पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इसके बाद आएगा ट्रांसलेशन, जब तक हम वो सब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तब तक आपको पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा. तो अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है दैट द RNA विच इज़ हैविंग मैसेज, हमको एक ही प्रोटीन बनाना है तो हम एक ही मैसेज अभी देंगे. सिंगल मैसेज विल बी टेकन फ्रॉम DNA by RNA. So one segment of DNA would be coding for two different proteins. अगर ऐसा हुआ कि दोनों ही DNA सीक्वेंस टेम्पलेट की तरह बिहेव करती रही तो टू डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी. थोड़ा कंफ्यूजन जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी. तो ऐसा न हो, इसके लिए सिर्फ एक ही DNA टेम्पलेट की तरह बिहेव करती है और उसका मैसेज mRNA लेता है. ये वैसी बात है, अगर आपको मम्मी पापा दोनों एक साथ कोई बात बोलते हैं तो आप दोनों की बात अच्छी तरह नहीं सुन पाओगे. ठीक है, सबसे पहले या कोई आपके फादर बोले तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, या फिर आपकी मदर एक बार बोले तब समझ में आएगा. दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो आप दोनों की बात अच्छे से नहीं समझ पाओगे. सो हियर ओनली वन DNA विल बी डायरेक्टिंग द मैसेज. सेकेंडली, the two RNA molecules, if produced simultaneously, would be complementary to each other. Hence, would form a double-stranded RNA. RNA कभी भी डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, बट ऐसी सिचुएशन होती कि दो DNA टेम्पलेट यहाँ पे वर्क करते तो दो RNA बनेंगे, और दो RNA बनते ही डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल जैसी सिचुएशन यहाँ पे खड़ी होगी. बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. दिस वुड प्रिवेंट RNA फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. वो अगर दोनों बेस पेयरिंग करके एक स्टेबल कंपाउंड बना देंगे तो प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगा, राइट? सो दिस वुड प्रिवेंट RNA फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. एक्चुअली तो इस RNA मॉलिक्यूल को मैसेज आगे कैरी फॉरवर्ड करना है. उसको ये मैसेज जहाँ पे DNA से मिल रहा है, DNA एक्चुअली न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस से उसको बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ ये मैसेज लेके जाना है, क्योंकि राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे होते हैं वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है. तो अगर ये इस तरह का प्रोसेस होता तो RNA अपना मैसेज आगे ही नहीं बढ़ा पाता. सो जो भी सिचुएशन है यहाँ पे DNA एक ही टेम्पलेट फॉर्म कर रहा है और अपना मैसेज दे रहा है, दैट विल बी प्रॉपर. अब किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन एक यूनिट की तरह काम करता है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज इन अंडर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. Actually, this transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions in DNA. अब हम DNA strand को समझ रहे हैं, क्योंकि जो मैसेज आ रहा है वो DNA दे रहा है. किस तरह से DNA मैसेज देगा और RNA उसको कैसे कोड करेगा वो हम समझेंगे इस डायग्राम की मदद से. ठीक है, सबसे पहले these 3 regions on the DNA, they are known as, first region is known as a promoter, जो ये प्रोसेस प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा या स्टार्ट करेगा. हम बोल सकते हैं इसको समझने के लिए इंजन की तरह काम करेगा. देन स्ट्रक्चरल जीन, जब ये पूरा प्रोसेस चलेगा, कोई भी जब नई इवेंट होती है तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्पीच होती है. ठीक है, फिर वो पूरा इवेंट चलता है और उसके बाद एक लास्ट में
एंड वाली स्पीच होती है या थैंक्स वाली स्पीच होती है। तो हम इस पूरे इवेंट को ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रमोटर इज एक्टिंग एज अ इंट्रोडक्टरी स्पीच या स्टार्टिंग पॉइंट, स्ट्रक्चरल जीन पूरा इवेंट चल रहा है, और टर्मिनेटर जो लास्ट में इस प्रोसेस को एंड कर रहा है। तो इस तरह से 3 पार्ट में हमने 3 रीजन्स में हमने इसको डिवाइड किया है। ओके, अ प्रमोटर, अ स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर जीन। ये सारे वर्ड्स आपको एज सच यूज करने हैं डिस्क्रिप्शन में। आप कभी भी अपना ओन डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे, उससे बहुत गलतियां होती हैं आंसर लिखने में। खाली समझने के लिए मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल्स ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, वो सिर्फ समझने के लिए यूज करना है। आपको एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। लिखना क्या है, जितना भी वर्ड टू वर्ड आपको बुक में दिया है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैंने यहाँ पे स्लाइड शो में आपको दिखाए हैं, वही आपको कॉपी डाउन करने हैं आंसर फॉर्म में, राइट। नाउ लेट अस सी द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस diagram. It is actually the schematic structure of a transcription unit जो अभी हम पढ़ रहे हैं. The unit consists of 3 regions: promoter, structural gene and terminator gene. आप देख सकते हो ये दोनों strands हैं 5' to 3', 5' to 3'. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की. ये जो ब्लू कलर की स्ट्रैंड है दैट इज अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. ठीक है, जो कोई भी एक स्ट्रैंड डीएनए की टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगी, वो अपना मैसेज किसको देगी, एमआरएनए को. और ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है विच इज शोइंग एमआरएनए, इट इज एक्चुअली नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये कोड कर रही है. इसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो इसको कोडेड मैसेज में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हमने इसको कोडिंग स्ट्रैंड नाम दिया है. नाउ इतने पोर्शन में जब स्टार्टिंग होगा तब यहाँ पे प्रमोटर होगा. यहाँ आप देख सकते हो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा. उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स आएंगे यहाँ पे. जब तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा तो यहाँ पे जो भी प्रोटीन बनना है उसके लिए मैसेज इस रीजन में होगा. और लास्ट में जो टर्मिनेशन पोर्शन है वहाँ पे कौन सा मैसेज होगा कि नाउ अब ये जितना भी प्रोसेस हो गया, प्रोटीन बन गया, अब इसको स्टॉप कर दो. ठीक है, तो स्टॉप मैसेज होगा इतने पोर्शन में. रेड वाले बॉक्स में स्टार्ट मैसेज होगा, ब्लू वाले बॉक्स में स्टॉप मैसेज होगा, और जो इन बिटवीन पूरा पोर्शन है स्ट्रक्चरल जीन जिसको हमने बोला है, वहाँ पे कौन सा प्रोटीन बनना है उसका मैसेज होगा. ठीक है, इस तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं. अब सपोज टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर इस तरह की सीक्वेंस है. ठीक है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3' एंड है, आप देख सकते हो ये 3' एंड, और ये 5' एंड है, यहाँ पे भी ये 5' एंड है. और इतने बीच में जो भी रीजन आपको दिख रहा है उसमें इस तरह की सीक्वेंस है. तो ए के सामने कोडिंग स्ट्रैंड में टी आएगा. ठीक है, टी के सामने ए आएगा, क्योंकि ये अभी डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स दिखाए हैं. बट जो भी एमआरएनए यहाँ से मैसेज लेगा वो इसको कॉपी करके और यहाँ पे एक एमआरएनए का पूरा स्ट्रैंड बनाएगा. ठीक है, सपोज इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोड किया इस तरह से, आप देख सकते हो सी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है जी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सी, इसी तरह से ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी, एंड सो ऑन. ठीक है, इस पूरे पे आप देख सकते हो ये हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है. अब जो नया एमआरएनए बनेगा वो कैसे कोड करेगा, आप भी अंदाज लगा सकते हो, आपने शायद लगा ही लिया होगा. सो आई एम टेलिंग यू, जैसे ही ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा टी विल बी कोडेड एज ए, क्योंकि टी के सामने ए आएगा. ए के सामने टी आना चाहिए, बट दिस इज एमआरएनए मॉलिक्यूल जो यहाँ पे प्रेजेंट है. हम वर्चुअली इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रैंड बन रहा है एमआरएनए का जो ये मैसेज ले रहा है. तो उसने सबसे पहले मैसेज लिया ए, उसके बाद उसने मैसेज लिया यू, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही बोला था कि एडेनिन विल बी कोडेड एज यूरासिल. यहाँ पे थायमिन नहीं होता है, आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता है, तो एडेनिन के सामने यूरासिल आएगा. सो ए के बाद यू आएगा, उसके बाद जी,
C A, again U, G C A U, G C A U एंड सो ऑन. ठीक है, आप अंदाज लगा सकते हैं, बाकी का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आप. ऐसा हो तो एक रफ नोटबुक में इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे मैसेज फॉर्म में mRNA के ऊपर, वो आप इमेजिन कर सकते हो. नाउ लेट अस डिस्क्राइब इस पूरे दिस schematic representation of transcription unit you are supposed to draw in your classwork. This is important. और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तब आपको एग्जाम में भी ये ड्रॉ करना है. नाउ हम समझते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा. अभी तो हमने रफ आइडिया लिया है डायग्राम को देख के, अब हम अच्छे से समझेंगे इन डिस्क्रिप्टिव वे. नाउ देयर इज अ convention in defining the two strands of DNA in the structural gene of transcription unit. So since two strands have opposite polarity, जैसा हमने देखा था 3' and 5', अगेन उसके ऑपोजिट होगा 5' and 3'. So here the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction. क्योंकि यहाँ पे अब RNA मॉलिक्यूल का बनना है तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? RNA पॉलीमरेज. रेप्लिकेशन वाले डायग्राम में इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट था, क्योंकि वहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा था, रेप्लिकेशन हो रहा था, डीएनए नया डीएनए बन रहा था. बट यहाँ पे हमको क्या बनाना है? आरएनए. तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हम यूज करेंगे. ठीक है. So it is DNA dependent RNA polymerase which also catalyze the polymerization in only one direction. Direction वही होगा 5' to 3', and the strand that has the polarity 3' to 5' act as template. तो ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी है, और mRNA का पोलैरिटी होगा 5' to 3'. ठीक है. On the other hand, which has the polarity 5' 3' and the sequence same as RNA, and as I have said to you, thymine will be replaced by uracil and is displaced during transcription. Now this strand which does not code for anything is referred to as coding strand. अभी हमने बताया इसको हमने कोडिंग स्ट्रैंड नाम दिया है. ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, एंड दिस स्ट्रैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग. ये आपको याद रखना है. ऑल द रेफरेंस पॉइंट while defining a transcription unit is made with coding strand, and we have explained किस तरह से टेम्पलेट स्ट्रैंड से कोडिंग स्ट्रैंड हम देखते हैं बनती हुई, और उसके बाद mRNA मॉलिक्यूल बनता हुआ हम देखते हैं. लास्टली द प्रमोटर and the terminator flank the structural gene in a transcription unit. अभी हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम तीन चीज़ें इंक्लूड करते हैं. सबसे पहले प्रमोटर आता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन आता है, और लास्ट में टर्मिनेटर जीन आता है. हमने इस डायग्राम में अच्छे से समझ लिया है, राइट. तो यही सीक्वेंस हम याद रखेंगे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. इसी की हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में. The promoter is said to be located towards 5' end, that is upstream of the structural gene, and it is the DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase, and it is the presence of promoter in the transcription unit that also defines the template and coding strand. तो वहीं पे आके mRNA join होने वाला है. By switching its position with terminator, the definition of coding and template strands could be reversed. So the terminator is located towards 3' end, that is downstream of the coding strand, and it usually defines the end of the process of transcription. ये हम फिर से इस डायग्राम में देख सकते हैं जो अभी हमने समझा. ठीक है. So promoter situated here and terminator situated here. There are even additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream to the promoter.
Some of the properties of these sequences will be discussed while we will be dealing with regulation of gene expression in the next part of the same chapter. तो आज हम यहीं तक देख रहे हैं कि किस तरह से हमने अभी तक समझा the transcription process, and only the thing which has to be described that is related to transcription only. ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट मैनी टाइम्स ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो जनरली आपको इतना ही लिखना होगा. अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसे वर्क करता है इन जनरल पूछा जाए तो आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन ही देनी है. सो टुडे वी आर एंडिंग आवर सेशन विद दिस टॉपिक ओनली. और अब मैं थोड़ा सा अ लिटिल बिट स्लोली आपको एक एक टॉपिक करवा रही हूँ. वाई? बिकॉज दिस इज़ टोटली न्यू कंसेप्ट, और आप अच्छे से इसको टाइम लेके समझेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू. ये चैप्टर वैसे भी थोड़ा स्कोरिंग है. मोस्टली इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये इंडिविजुअली जितने भी टॉपिक हम ले रहे हैं वो अपने आप में एक लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. सो आपको इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा, और साथ साथ में जितने भी चार्ट्स आते जाते हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है? सो आई होप यू लाइक दिस न्यू टॉपिक transcription, and you will revise it. You will promise me that you will revise daily all these topics, this chapter particularly. और बीच बीच में मैं आपको कुछ एनिमेशंस के वीडियो भी साथ साथ दूंगी ताकि आप अच्छे से इनको किस तरह से ये प्रोसेस होता है वो वर्चुअली अभी हम समझ रहे हैं, बट आप विजुअली आप उसको देख सकते हो. तो आई विल ट्राई, मैं आपको कुछ वीडियोज़ इससे रिलेटेड दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में. सो यू जस्ट हैव अ लुक और अच्छे से ये आप टॉपिक समझ लेना. ओके? सो टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स.